वेलकम फ्रेंड्स एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली दो मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन इज टू टॉक अबाउट द अपकमिंग एनएफओ फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड व्हिच इज ऑन द डायनामिक एसेट एलोकेशन साइड। ये एक एफओएफ करके एक एनएफओ आ रहा है। एफओएफ होता क्या है, एफओएफ एनएफओ में क्यों काम करना है, उसको समझाने के लिए आज हमारे पास में निधि मैम है, गौरव सर हैं, कपिल सर हैं। सो बहुत कुछ हम आज समझेंगे, सीखेंगे। मेरे को इतना याद है दोस्तों कि आज से 2 साल पहले आप लोगों ने कभी मल्टी एसेट नहीं बेचा था, राइट? एंड दैट इज व्हेन जब पहली बार कोटक मल्टी एसेट आया था मार्केट के अंदर में, दैट इज वेयर वी एक्सप्लोर्ड दिस कैटेगरी कि यार मल्टी एसेट क्यों बेचना चाहिए। एंड दैट वाज द डे। एंड उसके बाद 2 साल बीत गए एंड आई थिंक currently we have a book of more than 200 crore in just multi-asset allocation funds from multiple AMCs, including SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनके एनएफओ में हमने काफी काम किया था। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई सी इज दैट हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे फंड ऑफ फंड्स के ऑफरिंग्स आने वाले हैं। एंड टू बिगिन विद एसबीआई इज द वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एएमसीज जिनके एफओएफ के एनएफओ में हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का सेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये एफओएफ कैटेगरी होती क्या है, व्हाई डू वी से दैट इट ब्रिंग्स the best of all the fund managers, the best of all the worlds from a fund house in one single offering. How we can project it as one package, as one wrapper. कि बॉस खाली ये wrapper ले लो, you will get the best of SBI from taking just this one product. तो दोस्तों इसको लेकर के आज हम लोग एनएफओ के बारे में समझेंगे। The NFO is going to be managed by Miss Nidhi Chawla. She's a fund manager at SBI Mutual Fund, and she would take us through this presentation. And we are joined in by Gaurav Dharma sir. He is the head of distribution for our channel at SBI Mutual Fund. So before Gaurav sir starts, I would quickly want to introduce Gaurav sir. He's an MBA graduate from Symbiosis Institute of Business Management, SIBM Pune. He has a total work experience of more than 21 years in our industry and has been associated with SBI since 2010. He started his stint with SBI in Delhi and he moved to Bangalore in 2015. He is currently the Senior Vice President and Zonal Head South for SBI Fund Management Team. Prior to this, he has worked with Citigroup and HSBC on the banking side. And we have a lot to learn from Gaurav sir here. We shared a great relationship with Sandeep sir. And Gaurav sir has filled in his large boots. So Sandeep sir was one of my mentors, जिनके थ्रू मैंने बहुत कुछ समझा था, सीखा था. I'm sure Gaurav sir would carry on that legacy of teaching us as to how to take the business forward. तो दोस्तों आज के सेशन के इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग इस फंड के बारे में समझेंगे. Once Nidhi ma'am is done, then Gaurav sir will take us through the business proposition side of it, कि कैसे हम लोगों को इसको फील्ड में लेके जाना है, why we should be selling it, and we will be open to taking all the Q&A. Once this first part of today's discussion is over, जब ये पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, तब फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे, जिसके लिए आप लोग बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए, दैट इज कि ये जो अभी माइग्रेशन हो रहा है एनएससी NMF2 से NSE इन्वेस्ट में माइग्रेशन हुआ है, तो हाउ इज द वर्ल्ड गोइंग टू लुक लाइक, उसको लेकर के हमारा एक बहुत ही लंबा सेशन रहेगा. तो हमने उसको सेकंड हाफ में इसीलिए रखा क्योंकि हमको भी नहीं पता वो कितना लंबा चलेगा. सो वो हो सकता है कि 1 घंटे चल जाए, 2 घंटे चल जाए. एंड आई एम ऑल रेडी to discuss with you guys at length, try and solve all your queries. So till then, let's begin today's session. On that note, I can see more than 200 people have already joined this group. So welcome Nidhi ma'am, and the stage is all yours. आपको मैंने screen sharing के rights दिए ma'am, so if you want to share a presentation, you can do that. Else, if you want to just talk about the fund, we are all ears to you. Thanks so much, Hitesh. Can you see my screen? Not yet ma'am. One second here. I can now. Now it's coming on. Okay, and sure. I think my Yeah. video is also having some issues, so sorry I'm not able to switch on my video. And I'm trying to do it, but it's just not coming actually on this webinar. So thank you so much everyone to join in for this. So this is regarding the launch of the Dynamic Asset Allocation Active Fund of SBI. Just to take you through, या फिर if I actually think about it, why this fund and why we are thinking of launching this fund today. I think firstly, the सबसे पहली बात, I think it is for the need for asset allocation.
Now, why we talk about asset allocation and as a fund house, I think we've actually worked quite a lot in terms of building this framework. And this framework, we've been working this for almost now we have back tested data was almost 15-20 years. The fund that we launched earlier, which was Balance Advantage, then we also did our then we also did our quant fund, and now we are taking it एक step आगे बढ़ के we are trying to basically say that along with the asset allocation between debt and equity, we will also try to take a step further and try to give you an ideal solution where style. तो अपार्ट फ्रॉम एसेट एलोकेशन जो इक्विटी और डेट में डालना है, उसके अलावा विद इन इक्विटी एंड डेट कैसे सेक्टर्स, कैसे स्टाइल्स और कैसे मार्केट कैप बायस में डालना है, वो वी हैव एक्चुअली गॉन अहेड एंड ट्राई टू बिल्ड अ मॉडल ऑन दैट. सो अगर आप आज की डेट देखो, जो भी एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है और एक इन्वेस्टर रिटर्न होता है, उसमें हमेशा एक गैप होता है. एंड वो गैप हम क्यों देखते हैं, एंड हम पास्ट साइकिल के डेटा में भी जो हम देखते हैं, वो लार्जली होता है बिकॉज एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी वो साइकिल्स को टाइम नहीं कर पाता है. एंड समहाउ दैट एसेट क्लास टाइमिंग और डाइवर्सिफिकेशन दोनों अगर आप इकट्ठे करो, तब जाके वो एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर वे में देता है और इस बिहेवियरल गैप को ब्रिज कर देता है. एंड ये आज की जैसी मार्केट है जहाँ पे देर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज ग्लोबली. वी डोंट नो कि टैरिफ में क्या होएगा. And on the domestic front, the capex has slowed down. The growth is a concern while inflation has done much better. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कंजम्पशन का बूस्ट करने का ट्राई दे आर ट्राइंग टू डू इट थ्रू द जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. बट अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखोगे अर्निंग्स के बेसिस पे एंड ऑल, इट इज स्टिल म्यूटेड. जब ऐसा सिनेरियो रहता है, तब आपको एक्चुअली हाइब्रिड फंड्स या एसेट एलोकेटर फंड एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न को जनरेट करने के लिए. नाउ एवरी एसेट क्लास में अगर आप देखोगे, आई थिंक रिटर्न्स, ये बहुत ही बेसिक स्लाइड है. 1 ईयर रोलिंग रिटर्न देखोगे या 3 ईयर रोलिंग रिटर्न देखोगे, आई थिंक मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफर करता है. इवन ड्रॉ डाउन भी डिफर करता है अक्रॉस एसेट क्लासेस. जबकि अगर आप ऑप्टिमम मिक्स बनाओ, नाउ ऑप्टिमम मिक्स का मतलब क्या है कि जिसमें कोरिलेशन दोनों में कम हो. एंड इक्विटी और डेट में वी नो द कोरिलेशन इज लेसर. एंड ये स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर 100% इक्विटी लगाया, ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा आएगा. बट ड्रॉ डाउन और रिटर्न में स्टैंडर्ड डिविएशन, जो रिटर्न का वेरिएशन है, वो भी ज्यादा रहेगा. यही अगर आप अपने किसी मॉडल से एक ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन करोगे, जो ये हमारा मॉडल करने का ट्राई करेगा, वो लेसर ड्रॉ डाउन में आपको फिर भी हाई डबल डिजिट रिटर्न देगा, जो हमारा एंडेवर रहेगा इस फंड में या किसी भी हाइब्रिड पोर्टफोलियो में. सिमिलरली यहाँ पे एक पिक्टोरियली ग्राफ में भी हैव शोन कि अगर आप सिर्फ निफ्टी रिटर्न्स देखो या फिर कॉम्पोजिट डेट इक्विटी देखो, एवरेज रिटर्न विद अ लोअर वॉलिटिलिटी इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इन. ये एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो आपको देता है, जो कई बार ऐसा होगा कुछ साइकिल में लगेगा कि निफ्टी ज्यादा दे रहा है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज टाइम एंड अगेन टेस्टेड एंड टाइम अगेन प्रूवन दैट ये जो कॉम्पोजिशन करते हैं या फिर एक जो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाते हैं बिटवीन डेट एंड इक्विटी, आई थिंक वो आपको लेसर वॉलिटिलिटी, लोअर नेगेटिव रिटर्न एंड फिर भी डिसेंट एवरेज रिटर्न देता है. सिमिलरली ड्रॉ डाउन भी लोअर देता है, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाया. नाउ वन इज कि आपने एसेट एलोकेशन को डिसाइड कर लिया, जो हमने अपने इक्विटी एलोकेशन मॉडल में फॉर्म कर लिया, जैसे कि वो 60 हो गया, 40 हो गया, 50-50 हो गया. बट विद इन द इक्विटी एलोकेशन इज वेल, कभी कभी ब्रॉडर मार्केट चलता है, कभी निफ्टी चलता है. एंड वो क्यों, एंड मैं आगे आपको समझाऊंगी कि वो एक्चुअली कैसे डिटरमिन होता है. दी स्लाइड सिर्फ आपको यही शो कर रही हैं कि जैसे अभी साइकिल आपने देखा होगा पोस्ट कोविड, अगर 2021, 22, 23, 24 में ब्रॉडर मार्केट ने ज्यादा रिटर्न दिया, निफ्टी ने कम रिटर्न दिया, एंड बॉन्ड इंडेक्स ने उससे भी कम दिया, बिकॉज हम एक रिकवरी फेज देख रहे थे. सिमिलरली 2017 में अगर आप देखोगे, ब्रॉडर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया एज कंपेयर टू निफ्टी. रिटर्न दोनों अच्छा दे रहे हैं, बट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन वो 6% डेल्टा या फिर 4% डेल्टा आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न चेंज कर देता है. एंड ये सब डिटरमिन करता है उन मार्केट साइकिल से जिनको टाइम करना फॉर ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर थोड़ा टफ हो जाता है.
सिमिलरली अगर विद इन एसेट क्लासेस अगर आप देखोगे, एंड इसमें भी आपको मैं सेम टाइम पीरियड में लेके जाती हूँ, अगर 2021 टू 24 सिमिलर रिकवरी फेज जो हमने पोस्ट कोविड में देखा है, इट वाज काइंड ऑफ अ मार्केट साइकिल विच वाज डिटरमिन्ड वेयर ग्रोथ वाज पिकिंग अप, consumption was growth was picking up, consumption was picking up, government was putting up capex, and then पूरा the performance जो था, वो परफॉर्मेंस largely came in from small and mid caps, largely came from the style factor which was value rather than quality or growth. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो अर्ली साइकिल में आप सिर्फ ग्रोथ जैसी पुल अप होती है तब आपका वैल्यूएशन ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू द अदर ग्रोथ मैट्रिक्स, और एज कंपेयर टू लेट्स से मोमेंटम विच गेट्स पिक्ड अप ओनली इन द एंड. Similarly, within those, again, the third variable that we look at is defensive और cyclical sectors में कौन से सेक्टर्स कौन सी मार्केट साइकिल में अच्छा करते हैं, वो भी बहुत डिफर करता है. इसमें सिमिलरली 2021-24 अगर आप देखोगे, इट्स वेरी इजली विजिबल कि इंडस्ट्रियल्स एंड सिक्लिकल सेक्टर ने सबसे अच्छा किया था एज कंपेयर टू डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक आईटी, हेल्थ केयर एंड नॉन सिक्लिकल. नाउ ये पार्ट है इक्विटी का. द सेकेंड पार्ट ऑन द डेट, अगेन debt also moves in different cycles. So from the corporate bond, let's say अभी recently अगर आप देखोगे from the recent time, you have seen the GSEC is given very good returns, तो duration ने काफी अच्छा किया है. बट जब एक्चुअली आपका रेट साइकिल नीचे आ जाता है तब आपका अक्रूवल अक्रूवल इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी साइकिल में कहाँ पे हैं, इतना वेरिएबिलिटी है बिटवीन दोज एसेट क्लासेस ऑल्सो कि ये एसेट एलोकेशन मॉडल आपको वो सब आइडेंटिफाई करने में डायनेमिकली हेल्प करता है. एंड the good part about this entire thing is that it is actually getting revalued, reinvested on a monthly basis. So why do we need asset allocation? I think it's very clear. The risk adjusted return जो asset allocation से मिलता है, I think वो better होता है, drawdown lower होता है. Why ये इसको हम डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये एवरी शॉर्ट साइकिल को भी टाइम करने का ट्राई कर रहा है टू गेट दैट एक्स्ट्रा अल्फा जनरेशन टू अस. एक होती है बड़ी मार्केट साइकिल्स जहां पे हम देखते हैं कि 4 से 5 साल या 8 से 10 साल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहा होता है, केपेक्स बहुत करता है. बट विद इन दोज पर्टिकुलर साइकिल्स ये छोटी छोटी साइकिल्स को भी पकड़ने का ट्राई करता है. एंड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट एसेट क्लासेस में कोरिलेशन लोअर है, तो उससे आपका वो रिटर्न जनरेशन को स्टेडी कर देता है. तो इस यही सब सोच के एंड जो हमने अपना पास डेटा देखा है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एडवांटेज व्हाट वी ऑलरेडी मैनेज, या फिर कौन फंड विच वी ऑलरेडी मैनेज, और जो हम ऑलरेडी मंथली बेसिस पे अपना ये मॉडल लास्ट 10-15 साल से चला रहे हैं, वी केम आउट विद डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड. व्हाट दिस फंड इज डज इज दैट ए पहले वो को एसेट एलोकेशन देता है एंड वो एक स्टेप और आगे जाता है ये बोल के कि अगर हम कौन सी साइकिल में हैं आज, क्या हम डाउनटर्न में हैं या फिर हमारा रिकवरी फेस है जो हमने कोविड में देखा 21-24, क्या ये अर्ली अपस्विंग है? अगर आपको 2003-2007 का मार्केट याद होगा तो 2002 से 2004 तक एक वो अर्ली अपस्विंग था, एंड देन 2004 से 7 आपका एक एक्सपेंशन फेज आया था. तो ये उस मार्केट साइकिल को टाइम करता है, ये इन्वेस्टर साइकिल को टाइम करता है. नाउ यूजुअली क्या होता है, जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा होता है तो आपका इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी ग्रीड में चला जाता है. फिर आपका जब मार्केट नीचे जाता है तो सुपर फियर में चला जाता है, जो 2008-9 में हुआ या फिर एज रिसेंट एज कोविड में हुआ. तो ये ना ही आपका मैक्रो सेंटिमेंट मैक्रो साइकिल को पकड़ेगा, बट आपके इन्वेस्टर बिहेवियर को भी पकड़ेगा टू सी कि वैल्यूएशंस किधर जा रहा है, वेदर वो ओवर वैल्यू है या फिर वो अंडर वैल्यू है. तो दिस इज एक्चुअली अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पे आप ना ही मार्केट साइकिल देख रहे हो, आप इन्वेस्टर का सेंटिमेंट भी देख रहे हो और आप वैल्यूएशन को पकड़ रहे हो, और फिर आप उसको अक्रॉस स्टाइल, सेक्टर और मार्केट कैप में डिवाइड कर रहे हो. सो वी आर इस फंड में प्लीज लुक एट इट एज अ 3 to 5 year perspective. We are trying to optimize the risk adjusted return. In the first step we are doing the asset allocation जहां पे हम आज की डेट पे लेट्स से हम बोल रहे हैं कि जैसे लार्ज कैप वैल्यूएशंस आज की डेट पे मॉडरेट है, अर्निंग्स अर्निंग्स भी आज अर्निंग्स आज इतना अपटिक नहीं दिखा रहा है.
अगर FY25 का आप अर्निंग देखोगे, इट वॉज 1.4% फॉर निफ्टी, एंड आज हम FY26 के लिए 10 से 12% ग्रोथ बोल रहे हैं, जो एक्चुअली इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं है। एंड बट जो सेंटिमेंट है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पे आपका इन्वेस्टर आज की डेट पे यूफोरिया में नहीं है, तो उससे हमारे एक पोटेंशियल एसेट एलोकेशन आता है जो एक्चुअली काउंटर सिक्लिकल वे में काम करता है। अगर आप लास्ट में 2020 टू 25 का पीरियड देख रहे हैं, 2020 में एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क 100% इक्विटी चला गया, बिकॉज ऑब्वियसली एक शार्प करेक्शन हुआ पूरे मॉडल, पूरी मार्केट में। एंड देन जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहा है, ये एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क नीचे नीचे लाके 20% में बॉटम दिसंबर 24 में बनाया। उसके बाद अभी जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टर सेंटिमेंट आपका नीचे चला गया, वैल्यूएशंस आपका करेक्ट होना शुरू हो गया, स्पेशली ट्रम्प टैरिफ का टैंट्रम में Feb 25, ये मॉडल धीरे 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 ऊपर इक्विटी में चला गया एंड आज 60% इक्विटी एलोकेशन की तरफ चला गया। तो अगर आप किसी भी टाइम पीरियड में नोटिस करोगे, ये काउंटर सिक्लिकली आपको पहले तो हेल्प करता है कि कितना इक्विटी और कितना डेट में डालना चाहिए। इन द सेकेंड स्टेप जो हम करने का ट्राई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक मैक्रो अर्निंग साइकिल है, एक सेंटिमेंट हम पकड़ रहे हैं, और तीसरा है रिलेटिव वैल्यूएशंस। रिलेटिव वैल्यूएशंस नॉट फॉर द स्टॉक्स, बट रिलेटिव वैल्यूएशंस की लार्ज मिड एंड स्मॉल का वैल्यूएशंस क्या है, क्वालिटी वर्सेस वैल्यू का, स्टाइल का वैल्यूएशंस क्या है, सिक्लिकल वर्सेस डिफेंसिव सेक्टर्स का वैल्यूएशन क्या है। नो, ये सब हमें क्यों हेल्प करता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड एक्चुअली। हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टर जो इंडिविजुअली साइकिल्स को नहीं कैप्चर कर पाएगा, उनके लिए हम एक वेल्थ मैनेजमेंट का सोल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली बोल रहे हैं कि एवरी मार्केट साइकिल में कौन सा स्टाइल, कौन सा मार्केट कैप और कौन से सेक्टर्स चलते हैं, उसके बेसिस पे हम फंड एलोकेशन कर रहे हैं। We have the entire bouquet of funds available across these styles जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे हम एक्चुअली आपको वो एक्सपोजर दे सकते हैं जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑन अ डे टू डे, मे बी ऑन अ रियल टाइम बेसिस नहीं कर पाए, बिकॉज ये मॉडल डायनेमिकली मंथली बेसिस पे पोर्टफोलियो को रीजे कर सकता है, बिकॉज ये फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। सो अभी लेट्स सी एग्जांपल, इसमें अगर आप देखोगे, 2014 से 16 में रिकवरी फेज था, जहां पे मार्केट स्लोली रिकवर हो रहा था, गवर्नमेंट चेंज आया था, वहां पे भी सॉ वैल्यू बहुत अच्छा करा, ब्रॉडर मार्केट किया, और सिक्लिकल ब्रॉडर मार्केट मतलब BSE 500 एज कंपेयर टू निफ्टी। सिमिलरली जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहता है, आपका वो वही स्टाइल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाता है और मोमेंटम ग्रोथ को पकड़ लेता है, एंड देन आपको सिक्लिकल्स एंड ऑल में ज्यादा रिटर्न दिखता है। द थर्ड फेज इज एक्चुअली स्लो डाउन, एंड देन द फोर्थ कम्स इज द डाउन टर्न, वेयर आपका स्टाइल, मार्केट कैप एंड सेक्टर्स कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाते हैं, एंड वी हम पूरा लार्ज कैप और क्वालिटी की तरफ चले जाते हैं। To see today, where are we? Now, 2021-24, as I highlighted, I think it was a strong recovery phase in India, जहाँ पे आपका ग्रोथ पूरा पुश पुश इन द पुश फ्रंट हो गया, एक्चुअली फ्रंट में आ गया सारा, एंड जहाँ पे आपने ग्रोथ रिकवरी बहुत फास्ट देखा, तो आपका वैल्यू ज्यादा चला उसमें, ब्रॉडर मार्केट चला, एंड सिक्लिकल्स ने बहुत अच्छा किया। आज when we look at it, I think even in a market sentiment index and earning sentiment, हम समवेयर स्लो डाउन के बीच में हैं, क्योंकि एक बार रिकवरी के बाद अभी वैल्यूएशन डिसेंट हो गया है, बट अर्निंग्स पुशअप नहीं कर रहा है, विच इज वे वी आर सेइंग कि आज एक ऐसा फेज है जहां पे हम स्लो डाउन पे मिडिल कर रहे हैं, एंड ईदर द अर्निंग्स हैव टू शार्पली ग्रो अप to actually end up into a recovery phase. Otherwise, the preferred style today is nothing but large cap and defensives, जो हमारा आज हम इनिशियल पोर्टफोलियो देख रहे हैं। So, what advantage of this fund becomes is that it will be a flexible and a very dynamically managed allocation. इसमें आप एक फंड से दूसरे फंड में बाय सेल करेंगे तो इसमें कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं है, बिकॉज वो फंड कर रहा है रादर देन आप कर रहे हो। इसमें हमने ना ही तो मैक्रो फैक्टर्स लिए, हमने एक्चुअली इन्वेस्टर का सेंटिमेंट एंड एलोकेशन तीनों एंड वैल्यूएशन को, तीनों फैक्टर्स को लेके अक्रॉस स्टाइल्स, अक्रॉस मार्केट कैप एंड अक्रॉस सेक्टर एलोकेशन का मॉडल करा है। एंड इसमें इट इज निम्बल, बिकॉज फंड में इन्वेस्ट करना और निकलना,
for me to do it is much more effective as compared to, let's say, a investor doing it individually. Because and in terms of the fund allocation, so it will somewhere comes between your balance and hybrids and multi-asset portfolio, because ये both, it's kind of a best of both world, कि आपको ये एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क भी दे रहा है और ये आपको टैक्स एफिशिएंट वे भी दे रहा है टू मैनेज योर पोर्टफोलियो. जो हमारा मॉडल है, आई थिंक इट इज क्वाइट ट्राइड एंड टेस्टेड नाउ फॉर द एसेट क्लास नेविगेशन दैट वी हैव सीन फॉर द लास्ट 10-15 years नाउ. वी हैव अभी इस फंड के लिए हमने ऑलमोस्ट 20 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है. एंड ऑन द लेयर ऑफ द निम्बलनेस एंड एजिलिटी मीन्स कि मैं एज अ फंड हाउस कर रही हूँ बाइंग एंड सेलिंग विद इन द फंड्स, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर. And the good part is SBI has coverage across the spectrum in terms of the large cap, mid cap, large and mid cap, multi cap, and within sectors we have almost every strategy जो cyclically available है, and actually within defensive as well, which is IT, healthcare funds that we have. सो या सो इन टर्म्स ऑफ द एसेट एलोकेशन, आई थिंक ये फंड में मिनिमम 35% इक्विटी हम हमेशा रखेंगे, विच कैन गो अप टू 100%. डेट वुड बी 0 to 65. एंड तो अगर आप 2 साल तक इसको रखेंगे तो आई थिंक वो 12.12.5%, सॉरी 12.5% का टैक्स इंसिडेंस रहेगा आफ्टर 2 years ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो या आई थिंक नेट नेट इन अ नटशेल, ये फंड में इट इज मोर लाइक अ प्राइवेट वेल्थ सोल्यूशन फॉर यू, वेयर वी आर, हम खुद आपको फंड्स आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं बेस्ड ऑन द मार्केट साइकिल अक्रॉस, नॉट एक फैक्टर को नहीं देख रहे हैं, अक्रॉस फैक्टर्स देख के स्टाइल, मार्केट कैप और सेक्टर्स तीनों में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. एंड एस so that the risk adjusted return on a long term basis is better than actually investing directly into those funds or directly into equity or debt for that matter. Yeah, so I think that's a brief that I wanted to discuss, and I'll be more than happy to take questions. Thank you. ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच निधि मैम. आई थिंक जो आपकी बातों से मुझे समझ आया कि दिस फंड इज लाइक अ कंप्लीट सोल्यूशन टू अ क्लाइंट, कि भाई तुमको नहीं समझ आता है कि मार्केट कब पैसा डालना चाहिए, कब निकालना चाहिए. यू डोंट नो व्हेन टू इंक्रीज द इक्विटी, व्हेन टू रिड्यूस द इक्विटी, सो यू कम टू दिस फंड. अगेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मार्केट यू डोंट नो विच स्पेस वुड बी प्लेइंग आउट. कभी लार्ज कैप चलेगा तो कभी मिड एंड स्मॉल कैप चलेगा. जैसे आपने कहा कि भाई अगर हम लेट्स से रिकवरी फेज में, अगर हम अर्ली पार्ट ऑफ द बूम फेज में, तब उसमें मिड एंड स्मॉल कैप मतलब ब्रॉडर मार्केट चलेगा, तो उस समय वहां पैसा लगाओ. किसी समय आपको, जैसे अभी का जो सिचुएशन है, जैसा आप कह रहे हो कि अभी लार्ज कैप चलेगा तो आप वहां पैसा लगाओ. सो हु टेक्स ऑल ऑफ दिस डिसीजन? द आइडिया इज दैट यू लीव इट टू द फंड मैनेजर. दे वुड डू इट फॉर यू. अगेन डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंज चलती है. कभी मोमेंटम चलता है तो कभी क्वालिटी चलता है. सो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम यू हैव अ फंड मैनेजर who is like choosing the best of the worlds amongst SBI's fund universe, and then giving you a complete package, complete solution. So I would want that the participants can ask their questions in the chat box. But पहला question मैम मेरी तरफ से ये, I have seen that SBI Balance Advantage Fund is one of the best performing balance advantage funds in the market. I mean, you guys have kind of, I don't know how, but almost every time we see that you guys are in the top quartile. मतलब अभी भी मैं 3 year परफॉर्मेंस देखूंगा तो मेरे को दिखता है कि भाई यू आर अमंग्स द टॉप क्वार्टाइल फंड्स. मतलब अगर मार्केट में अगर 28 फंड है तो आपका रैंक नंबर 7 है. तो उस पर्सपेक्टिव से वी हैव नेवर सीन दैट एसबीआई इज डिसअपॉइंटेड, स्पेशली इन द हाइब्रिड फील्ड. तो जब ऑलरेडी अपने पास में एक अच्छा खासा एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है, then what is the difference that this fund is going to make? If you can elaborate on that point. So if अगर आप देखोगे राइट, दैट बैलेंस एडवांटेज वाज आवर ऑलमोस्ट अ फर्स्ट फंड ऑफरिंग, जिसमें हमने एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क यूज करना शुरू किया था. हम पहले भी करते थे बट इसको हमने और बेहतर बनाया, एंड आफ्टर दैट उसको बैलेंस एडवांटेज में यूज किया. नाउ फॉर अ बैलेंस एडवांटेज फंड एंड इट्स साइज, वो जब एलोकेशन चेंज होता है इक्विटी का, फंड मैनेजर के पास +-10% का लीवे होता है वो चेंज करने के लिए इक्विटी एलोकेशन. मान लीजिए मॉडल बोलता है कि 60% इक्विटी होना चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दिनेश एक्चुअली कैन गो अप टू 70 और ही कैन एक्चुअली गो टू 50. सिमिलरली इसमें व्हेन आई लुक एट द फंड,
फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने का ट्राई करोगे तो मेरे पास वो डायनेमिकली करना मच बेट आसान है मेरे लिए, बिकॉज मैं सीधा फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी लिक्विडिटी इजियर है, मैं ज्यादा डायनेमिकली कर रही हूँ। एंड सेकेंडली इस फंड में वी हैव गॉन फर्दर। बैलेंस एडवांटेज एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क देता है, और दिनेश उसको बेसिकली फॉलो करते हैं कि इक्विटी और डेट में कितना होना चाहिए। सिमिलरली उसमें वो मार्केट कैप बायस फिर भी देखते हैं कि लार्ज कैप कर रहा है, मिड कैप कर रहा है। इसमें वी हैव गॉन वन स्टेप फर्दर। पहले आप एसेट एलोकेशन डिसाइड कर रहे हो, फिर आप मार्केट कैप बायस डिसाइड कर रहे हो, थर्ड फैक्टर फिर आप ये भी बोल रहे हो कि अभी कौन सा स्टाइल चल रहा है, वेदर वो क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो ग्रोथ होना चाहिए, चाहे वो वैल्यू चलेगा, तो आप उसको भी ओवरले कर रहे हो। एंड देन फोर्थ, विद इन दोज डिपेंडिंग अपॉन आप साइकिल पे कहाँ पे हो, क्या मेरे को सिक्लिकल्स में डालना चाहिए या डिफेंसिव में डालना चाहिए। So, in a very tight nutshell framework, it just gives a better framework for me to invest across the what do you call asset classes. जो वो स्टॉक्स के थ्रू करेंगे, ऑब्वियसली एक्टिव फंड मैनेजमेंट थ्रू स्टॉक्स इज वेरी डिफरेंट, बट इसमें क्या है, इसमें आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे, क्योंकि मैं सारे फैक्टर्स को कवर करने का ट्राई कर रही हूँ और फंड्स में पैसा डालने का ट्राई कर रही हूँ, ये ज्यादा डायनेमिकली मैनेज हो सकता है, which is where I think it is positioned between balance advantage and multi-asset. ओके, सो निधि मैम, यहाँ पर एक सवाल चैट बॉक्स में आ रहा है कि व्हाट इज एन एफओएफ। अगर आप फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर को बता दीजिए कि क्या होता है, और आप लोग जब अपना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स चूज करोगे अमंग्स द फंड्स ऑफ एसबीआई फंड्स, एंड विच ऑल फंड्स आर यू गाइस प्राइमरी लुकिंग एट? Sure. So in fund of fund, this is an active fund of fund, जिसमें हम इसमें पैसिव फंड्स में नहीं डालेंगे। दिस इज बिकॉज इट इज नेम्ड एज एन एक्टिव फंड ऑफ फंड, वी विल इन्वेस्ट इन टू आवर एक्टिव फंड्स इटसेल्फ। वी आर नॉट टेकिंग स्टॉक एक्सपोजर और इंडेक्स एक्सपोजर्स, हम अपने फंड्स में ही डालेंगे। हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वी आर बेसिकली सेइंग कि बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन, मार्केट स्टाइल एंड मार्केट कैप बायस इन सिक्लिकल एंड डिफेंसिव। वी हमने एक लिस्ट बनाई है 8 से 10 फंड्स की आज की मार्केट साइकिल के बेसिस पे, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन वो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है टू अ लार्ज एक्सटेंट, सो दैट एटलीस्ट द फंड मैनेजर की बायस कम हो। फंड मैनेजर को ±10% का लीवे है ऑन द एलोकेशन वॉट एवर द मॉडल विल गिव, लेकिन बेसिस इट्स प्रॉपर अ फ्रेमवर्क विच इज बीन मैथमेटिकली डिफाइंड, उसके बेसिस पे हम आज की रेट पे ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये मॉडल वापस एंड ऑफ अगस्त हम रन करेंगे। बट अगर मैं एंड ऑफ जुलाई तक का देखूं, आई डोंट थिंक सो उसमें ज्यादा चेंज होना चाहिए। आई थिंक दी ओरिएंटेशन आज की रेट पे लार्ज कैप की तरफ होगी, क्वालिटी की तरफ होगी, एंड डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ होगी, एज कंपेयर टू लेट्स से रिकवरी फेज जहां पे आप बोलते हो कि मेरे को सिक्लिकल खेलना है और या ग्रोथ या वैल्यू खेलना है। So those are the funds that we are trying to target. On the debt side, given that the duration, the GSEC has fallen quite a lot, and the preference is actually towards more towards accrual than actually duration, or selectively playing where short term duration as compared to let's say the long term duration, वहां पे हम एक दो पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट बॉन्ड की साइड पे या मीडियम ड्यूरेशन की साइड पे देखेंगे। ये इनिशियल एसेट एलोकेशन है हमारी। सो एवरी टाइम द एसेट एलोकेशन चेंजेस, ये मंथली बेसिस पे वील कीप प्रोएक्टिवली मैनेजिंग दिस, बट विद इन द मंथ्स अगर जैसे मान लीजिए ट्रम्प टैरिफ का कुछ आ गया या कोई ऐसा कोई अनटोवर्ड इवेंट आया, बिकॉज हम सेक्टर फंड्स में भी डाल रहे हैं, बिकॉज सेक्टर फंड्स में वॉलेटिलिटी विद इन द मंथ भी आ सकती है, फंड मैनेजर के पास लीवे है कि वो विद इन द मंथ भी उसको चेंज कर सकता है। ओके, ओके, सो अगर मैम मैं ठीक से समझूं, then when you are going to choose amongst the different funds, and then we see that there are so many brilliant fund managers that you guys have. For example, SBI Focus, SBI Small Cap Fund चला रहे हैं Srinivasan Iyer, who is a stalwart in himself. And then you have the likes of an SBI Contra Fund and other funds from SBI, like I think large and mid cap, and sorry, large and mid cap is from Ruchir. SBI Contra Fund is from Dinesh sir. सो होता क्या है कि कभी हम लोग देखते हैं कि यार आपका कॉन्ट्रा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम जब फोकस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, बट अगेन लास्ट 1 year फोकस हैज कम बैक इन अ वेरी बिग मैनर. सो इट्स नॉट दैट द फंड मैनेजर्स आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट देयर स्टाइल वर्क्स इन डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट्स. सो अभी आपने जैसा कहा कि यार देखो
हमें समझ आता है कि किस समय कौन सा स्टाइल चलना चाहिए। तो किस समय श्रीनी के फंड में ज्यादा पैसा देना है या किस समय दिनेश सर के फंड में ज्यादा पैसा देना है, ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर लोगे। तो हम लोग को ये माथापच्ची नहीं करना है इसलिए कि किस फंड के अंदर में आगे पीछे करें। गिव इट टू वन फंड एंड निधि मैम वुड डू द रेस्ट फॉर यू। सो करेक्ट। बिकॉज अगर आप एक्चुअली देखोगे ना, कॉन्ट्रा लास्ट 3 साल में इतना अच्छा किया बिकॉज उस टाइम पे वैल्यू बहुत अच्छा कर रहा था। अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो फोकस अच्छा कर रहा है। यस। फोकस का बायस बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क ही ऐसा है कि उनका बायस हमेशा क्वालिटी पे दिखता है। नॉट दैट कि वो बोल्ड मतलब, एंड ही हैज ही इन हिज ओन माइंड ही हैज अ मैंडेट वेर ही थिंक्स दैट देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज जो वो लेते हैं। तो डिपेंडिंग आई थिंक वो स्टाइल भी, अभी इसमें भी हम फंड्स का स्टाइल डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉर एवरी फंड, बिकॉज वी हैव द डेटा ऑफ ऑल द स्टॉक्स। वी हैव वो स्टॉक्स कौन से स्टाइल में फॉल करते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट हर फंड का हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम एलोकेशन करेंगे। ओके। निधि मैम, एक और क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में चल रहा है वो पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर में फंड ऑफ फंड्स क्या कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। Nidhi, I will take up this question. Hitesh, तो ओके, यस सर। I'll take the liberty to answer this because I'm sure. इसमें देखिए, एक फंड ऑफ फंड में दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, करेक्ट। एक होता है अंडरलाइंग एक्सपेंस, एक होता है स्कीम एक्सपेंस। तो जैसे निधि ने आपको बताया कि कम से कम हम अबाउट 10 से 12 स्कीम्स देखेंगे जो इस फंड ऑफ फंड में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें फोकस्ड एक्विटी भी होगा, कॉन्ट्रा भी हो सकता है, आपका लार्ज एंड मिड कैप भी हो सकता है। थेमैटिक साइड पर थेमैटिक साइड पर उसमें हम बैंकिंग फाइनेंशियल देख सकते हैं, एनर्जी देख सकते हैं। जो भी ऑब्वियसली जो भी सिक्लिकल थेमैटिक फंड सूटेबल हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको देखेंगे। डेट पे हम इस टाइम जो देख रहे हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड और मीडियम ड्यूरेशन देख रहे हैं। तो ये जो भी 10-12 फंड्स बनते हैं, इनका एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है। और ये जो अंडरलाइंग फंड्स होते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये डायरेक्ट स्कीम के अंडर लिए जाते हैं। दीज आर नॉट अंडर रेगुलर स्कीम्स, दीज आर अंडर डायरेक्ट स्कीम्स। तो ये 10-12 फंड्स का हमने जो मिश्रण बनाया, उसका हमारा एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो निकलता है, जो हम टारगेट कर रहे हैं कि 65 to 70 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। और मैं आपको रीजन भी बताता हूँ ये क्यों नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये आपका एक बेस एवरेज एक्सपेंस रेशियो हो गया डायरेक्ट स्कीम्स के अंदर। अब जब हम एफओएफ की बात करते हैं, जो ओवरऑल स्कीम की बात करते हैं, उस पे जो एक्सपेंस होता है, वो जो ये पहले मैंने एक्सपेंस बताया, इसके डबल से ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर 65 है एवरेज, तो एफओएफ पे आप 1.3% जा सकते हैं। 60 है तो आप 1.2 जा सकते हैं, करेक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। और तीसरी चीज का जो ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो टोटल है, वो एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में 2% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बाई चांस अगर आपका बेस अंडरलाइन का 70 चला जाता है, तब आप एक 40 नहीं चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि वो 210 हो जाएगा। तब आपको इसको 130 पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो आइडियली हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 65 के आसपास रखें, और एफओएफ पे 130 चार्ज करें, तो टोटल हमारा 65 प्लस 130 195 के आसपास हो जाता है। एंड दो इट इज अ डबल टैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ डबल एक्सपेंस, बट अगर आप देखें कोई भी अगर आज की डेट में हाइब्रिड फंड लॉन्च होता है, तो उसका भी एवरेज एक्सपेंस रेशियो जिस पे वो लॉन्च होता है, वो लगभग 2% पर ही होता है। तो इससे हम एक चीज और इंश्योर कर रहे हैं कि कस्टमर इज नॉट एट अ लॉस। तो अगर आज एक नई हाइब्रिड स्ट्रैटेजी जो लॉन्च होती है, या फिर ये एफओएफ लॉन्च होता है, दोनों का लगभग लगभग 2% का ही अपर कैप रहेगा एक्सपेंस रेशियो का। तो देयर शुड नॉट बी अ पेनल्टी टू कस्टमर इन टर्म्स ऑफ कि दो एक्सपेंस रेशियोज चार्ज हो रहे हैं। आपको ये देखना है कि टोटल कितना चार्ज हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। सर या गौरव सर, अभी आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि नाउ यू डोन दी हैट ऑफ द सेल्स हेड या एंड टेल अस कि सर ये फंड क्यों करना चाहिए एंड किस तरह के इन्वेस्टर्स को टारगेट करना चाहिए? सी देखिए, मेरा मानना है, जैसे निधि ने भी इसको कैप्चर किया था, कि एक तो देखिए क्या होता है जब हम रिटेल की बात करते हैं ना, तो दो तीन तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक होते हैं सुस्त कस्टमर, जिनको हम कहते हैं लेजी कस्टमर्स, जिनको आपका 800 लोगों का टीम है, बट रीच आउट करने में बहुत टाइम लगता है, कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड टोल, करेक्ट। जब तक आप बताते हैं कि नहीं सर अब वैल्यू स्लो जा रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है,
तो कई बार आप कस्टमर तक पहुंच नहीं पाते और वो क्वालिटी का भी टाइम चेंज होने का आ जाता है। तो आई थिंक उन टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड फंड। एंड सेकेंडली, जो भी नए कस्टमर्स आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, देखिए बिकॉज ये फंड नया है, बट द गुड पार्ट इज कि ये एक अननोन स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हम लार्जर मिड कैप डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, कॉन्ट्रा डाल रहे हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर दैट दीज स्कीम्स हैव अ वेरी ट्रस्टेड परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट। सो दैट मीन्स यू कैन प्ले अ लिटिल ब्लाइंडर ऑन दीज थिंग्स। ऐसा ये नया फंड नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता कि फंड का पोर्टफोलियो कैसा बनेगा, वो परफॉर्म कैसा करेगा, उसका फंड मैनेजर कौन होगा। अंडरलाइंग स्कीम्स की जो आपको क्लैरिटी राइट एट द स्टार्ट है, विच गिव्स यू अ बेनिफिट दैट फॉर द न्यू सेट ऑफ कस्टमर जो आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, उन कस्टमर्स के लिए भी ये फंड आप एज अ पोर्टफोलियो कंसोलिडेटेड पोजिशनिंग कर सकते हैं। करेक्ट। जिसको हम एक इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी के बारे में कहते हैं कि दिस गिव्स यू अ बंडल ऑफ इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज ऑल टुगेदर विद इन अ फंड हाउस which has a variety of fund managers, because you mentioned about that point कि जब वासन ड्राइव नहीं कर रहे थे तो बाला वो समवेयर टेकिंग ओवर, जब बाला स्लो हुए तो वासन केम बैक। सौरभ पंत, आपने लार्ज एंड मिड कैप की बात करी, आपने लार्ज कैप की बात करी, सौरभ पंत इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब आउट देयर। निधि खुद बहुत अच्छी तरीके से इक्विटी सेविंग स्ट्रैटेजी मैनेज कर रही है इस टाइम। तो एंड निधि इज अ चैंपियन इन मैनेजिंग द हाइब्रिड स्ट्रैटेजी इन टोटल। एंड तीसरी चीज आई थिंक सबसे बड़ी बात है टैक्सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है कि आज पहले हमने सुस्त कस्टमर की बात करी, आज हम एक्टिव कस्टमर की बात करते हैं। अगर आपने एक्टिव कस्टमर को भी अप्रोच किया कि एक स्टाइल चेंज आ रहा है, तो आपको एक जगह अपना एलोकेशन हल्का करके दूसरी जगह भारी करना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो टैक्स ट्रिगर करेगा कस्टमर लेवल पे। राइट। तो वो टैक्स ट्रिगर बचाने के लिए एफओएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज स्कीम चेंजेस विद इन द फंड है, जो जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट कस्टमर को नहीं आता है, एंड एट द स्कीम लेवल इट इज फ्री ऑफ टैक्स। ओके। सो ये तो गौरव सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया टेक्निकल रीजन कि क्यों इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए। बट मेरे को लगता है कि जो बात मेरे को कपिल सर बता रहे थे और सुदीप दा हमेशा ही बोलते हैं, वो ये कि देखो तुम नहीं जाओगे ना तो एसबीआई बैंक वाला पहुंच जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। That is the way हाँ जी। SBI works. That there are so many national distributors and there are so many banks and fintechs that are all out there going to approach. देखो इतना सिंपल प्रोडक्ट बार बार नहीं आता है, राइट? तो करेक्ट। इतना सिंपल प्रोडक्ट क्या है ना कि बैंक वाला हर बार अपने इन्वेस्टर तक पहुंचेगा, देखेगा कि इसके अकाउंट में 10 लाख रुपया रखा हुआ है, बोलेगा सर एक नया एफडी आया हुआ है। बट ये नया एफडी नहीं है, क्या फंड है ये आप लोग समझ गए। बट द हाँ जी। पॉइंट इज दैट योर इन्वेस्टर ओनली इज गोइंग टू गेट अप्रोच्ड by the banks and by all the players. So why not we go and approach? जब आपने खुद ही निधि मैम से, गौरव सर से इस फंड के बारे में सब डिटेल समझ लिया है, तो we should actually go out and reach to the end customer via this product. सर एक और क्वेरी मेरे पास आ रही है कि क्या इस फंड में हम लोग क्या गोल्ड सिल्वर भी यूज करने वाले हैं? एंड नहीं। एक और क्वेरी, ओके, सो दैट इज कि दिस सो इज नॉट। बेसिकली क्या है, इसमें आप गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज नहीं ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप सपोज से कॉमा फंड में इन्वेस्ट करते हैं, करेक्ट, एसबीआई कॉमा फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके उसके इंग्रेडिएंट्स में गोल्ड सिल्वर आता है, दैट कुड बी योर इनडायरेक्ट एक्सपोजर। बट डायरेक्ट, क्योंकि एक पहली बात है, एक एफओए एक दूसरे एफओएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, एक एफओएफ एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो दैट मीन्स मल्टी एसेट, जिसमें गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर होता है, मैं मल्टी एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं गोल्ड फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो इटसेल्फ इज एन एफओएफ। और ना ही मैं इसमें गोल्ड ईटीएफ में कर सकता हूँ। बट यस, मैं एसबीआई कॉमा फंड में कर सकता हूँ। और अगर एसबीआई कॉमा फंड में गोल्ड एंड सिल्वर है, तो दैट बिकम्स एन इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू गोल्ड एंड सिल्वर। आई होप आई एम एबल टू गिव यू दैट क्लैरिटी। यस सर। एंड सर एक और क्वेरी मेरे पास में आ रहा था कि जैसा कि निधि मैम ने अपने स्लाइड में दिखाया कि ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ 2016-17 एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2020 व्हेन द मार्केट्स बिकेम वेरी चीप, तब हम्म। आपके बैक टेस्टेड मॉडल ने इक्विटी को 100% तक भी चलाया था। सो कैन वी एक्सपेक्ट दैट व्हेन द प्रोडक्ट गोज लाइव, कैन द इक्विटी रेंज गो अप टू 100% एज वेल? निधि, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? या सो थैंक्स। सो श्योरली यार हितेश, मतलब वो तो इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ आप साइकिल पे हो। आई थिंक हम ऑलरेडी दो इंस्टेंस उस इस मॉडल में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे वी हैव सीन दैट, एंड आई विल टेल यू द टाइम पीरियड्स। उसमें इट्स वेरी एविडेंट कि वो जैसे ही आपका मार्केट टाइमिंग के अंदर 2008-9, 2016-17 एंड 2020-21,
3 इंस्टेंसेस तो हैं जहाँ पे आपका 100% था. Apart from that, again there was a minor recovery in 11 to 14 also, जहाँ पे ये 80% पे था. And then as recent as now, it is at 60%. तो what you have to understand is कि it's very dynamically driven, and इसमें सिर्फ macro factors नहीं है, इसमें valuation है, and the most important part इसमें investor sentiment है. Usually क्या होता है ना कि आपके macro based models बहुत ही long term trends दिखाते हैं, जहाँ पे हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है नो जी से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, या फिर ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. इसमें हम हर चीज को कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि आपका यील्ड पूरा नीचे गिर गया है, मार्केट टॉप पे है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट यूफोरिया में है, तो मैं वहां पे 100% पे रह नहीं सकती. देन वो एंड अभी एज रिसेंट जैसे 21 to 24 मार्केट ऊपर जाते जा रहा था, ये मॉडल काटते ही जा रहा था. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे आप राइटली बोले कि बैलेंस एडवांटेज फंड ने फिर भी अच्छा किया है, जो वो पूरा इस मॉडल को फॉलो करता है एंड डायनेमिकली करता है. तो वो 100% इक्विटी से 20% इक्विटी पे भी गया है, और अभी 60-65 पे भी जा रहा है. तो एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वो 3 साल का रिटर्न में आप जैसे बोले राइट, उसने उसको इफेक्टिवली कैप्चर कर लिया है. अब वो स्टॉक्स के थ्रू कर रहे हैं, ये सेम फंड आपका फंड्स के थ्रू करेगा. फेयर इनफ मैम. गौरव सर, एक आखिरी सवाल एक और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो ऑडियंस भी पूछ रही है कि सर कितना बनेगा. सी मतलब देखिए, ऑब्वियसली ये सबसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एंड वी हैव टू बी सो वी कैन ऑलवेज गिव यू अ ब्रैकेट. देखिए, हम ये स्ट्रैटेजी जो देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ा बैक प्लस मोड पे चले जाएं. करेक्ट. तो आइडिया यही रहता है कि अगर हम 2 साल का टैक्सेशन देख रहे हैं इस फंड में, बिकॉज 35% हाइब्रिड टैक्सेशन है इसमें, 12.5% का. So ideally, we should target that on a 3 year basis, 3 to 5 year basis. We should be able to deliver maybe an early double digit kind of a return, right? Ideally, that is the objective, because as Nidhi also clearly mentioned, that we are operating this fund on our asset allocation model, which is a very tried and tested one. Correct. सो बैक प्लस लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली हम अर्ली डबल डिजिट के आसपास देख सकते हैं इसको. यस, बट इट विल हैव इट्स शेयर ऑफ वोलेटिलिटी, बट यस, ऑन द लेसर साइड, ऑन अ मच लेसर साइड. Right. So, I think if I were to summarize what all we have या learned from this या particular product is that कि दोस्तों ये एक ऐसा फंड है ना जो कि आप किसी भी इन्वेस्टर को दे सकते हो. नॉट एब्सोल्युटली. नेसेसरीली कि ये एक ऐसा फंड है कि आपको सिर्फ अपने रिटायरमेंट वाले क्लाइंट को देना है, ऐसा जरूरी नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आज इंडिया में अभी भी सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है. देयर इज अनदर होल होस्ट ऑफ 20 करोड़ और खाली हो गए हैं. ड्रीम्स 11, वो ऑनलाइन गेमिंग के बाद 20 करोड़ और रेडी हो गए हैं, और पैसा आ सकता है आपके पास. तो ड्रीम इलेवन वाले के पास जब जाओगे, जो बेचारा पैसा जला के आया है, तो वो वो अलग है. सेफ्टी फर्स्ट ढूंढेगा. बट सेफ्टी फर्स्ट के नाम पे एसबीआई बैंक वाले उसको एफडी कराएंगे. इसके पहले आप पहुंच जाओ और बोलो कि सर मैं आपको एफडी प्लस प्लस एक्सपीरियंस दूंगा. और मैं इनफैक्ट आप हितेश, हितेश जो आप बोल रहे हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे, कि अगर आप एक एएमसी लेवल पे देखें, तो जनरली कोलकाता इज इज नॉट वन ऑफ देयर टॉप मोस्ट मार्केट्स, बट फॉर एसबीआई इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मोस्ट मार्केट. उसका रीजन एग्जैक्टली यही था कि जब आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा वो चिट फंड फ्रॉड्स हुए, करेक्ट, सडनली एक फ्लाइट टू सेफ्टी बोलते हैं, और फ्लाइट टू सेफ्टी में आई कैन से दैट इनफॉर्मली ग्रेप वाइन इज की फ्लाइट टू सेफ्टी की बात की जाती है तो एसबीआई का नाम अमंग द टॉप 3 नेम्स आता है, राइट. एंड वी आर नॉट सेइंग कि जस्ट फ्लाइट टू सेफ्टी शुड गेट यू मनी इन एसबीआई, बट जो एसबीआई पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट करता है उसमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है कि हमारा कई बार एंड कस्टमर किसी भी लेवल का हो सकता है. हम 500 रुपए से लेके 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हुए एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आप पैसे को एक अच्छे प्रिजर्वेशन मोड में ग्रो करें, और बहुत ही इलॉजिकल थॉट प्रोसेस अप्लाई ना करके थोड़ा कंजर्वेटिव रखें, बट एक फैक्चुअल एक अच्छी ग्रोथ कस्टमर को दे पाए. सो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ गुड डिफरेंस whenever such incidences happened in the market. Ideally, that brings in some sensibility in the markets and get the customers aligned towards the right products. So this is a great opportunity in that extent also. correct. So SBI is actually one of the most responsible fund houses. I mean, if you guys are managing more than 11 lakh crore of people's money,
then 12.28 to be precise. okay, all right. So my mistake. So thank you for correcting नहीं me. नहीं नहीं, नॉट Uh, योर मिस्टेक यार, नहीं थैंक्स नहीं, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप काम अच्छा करते हो, भूल जाते हो ना कितना अच्छा कर रहे हो, तो हमें बताना पड़ता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो हमारे लिए। राइट। सो दोस्तों देखो, आई मीन जस्ट इमेजिन, बोलने को 12.28 लाख करोड़ बोलने में कितना ही समय लगा, लेकिन कभी लिख के देखो, आपको समझ में आएगा उसमें कितने जीरो होते हैं। तो जब इतना पैसा, जब अगर कोई फंड हाउस मैनेज कर रहा है ना, दे वुड हैव टू स्टिक देयर नेक आउट एंड मैनेज इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। एंड दैट इज वेयर व्हेन इट कम्स टू हाइब्रिड प्रोडक्ट्स ना, एंड नॉट जस्ट हाइब्रिड, आई मीन इवन इन इक्विटी प्रोडक्ट्स, बट स्पेसिफिकली इन हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, हाइब्रिड में हम उसी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़ा रिस्क एवर्स हो। So that is where we are very comfortable working with SBI. And in fact, SBI has one of the highest hybrid books in Phenomatic as well. So लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें 3-5 साल के लिए अगर पैसा देंगे तो क्या रिटर्न बनेगा? तो आई थिंक जो सर गौरव सर ने कहा कि अर्ली टू डबल डिजिट्स, मतलब कि आप FD प्लस प्लस वाला एक्सपीरियंस पकड़ो तो अराउंड 10-11% का रिटर्न कहीं नहीं गया है। बट द ब्यूटी इज कि इसमें वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी, राइट? सो करेक्ट। उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग समझाऊं आपको, तो एक तो होता है सिंपल डेट फंड्स जो आपको 7-7.5 के आसपास रिटर्न बना के दे देता है, अभी तो और थोड़ा सा कमी बनेगा वहां पर। फिर आता है हमारा हाइब्रिड का सेगमेंट, जहां पर आपके पास में एक तरफ बैलेंस एडवांटेज है, एक तरफ मल्टी एसेट है, और उसके ऊपर इक्विटी हाइब्रिड है, राइट? और उसके बाद में हमारे पास में सारे वो इक्विटी फंड्स आ जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह वगैरह। तो बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट के बीच में कहीं ना कहीं निधि मैम ने रखा है इस फंड को, कि बॉस ये दोनों के बीच में कुछ बना के देगा अपने को, एंड विच इज वेयर वी सेट कि 10-11% कहीं नहीं किया है। लोग चैट बॉक्स में ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या इससे SWP दे सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि यस, आई मीन ऑल दीज हाइब्रिड फंड्स आर बेस्ट सुटेड एब्सोल्युटली। फॉर SWPs। जैसा कि सर ने कहा कि 2 साल के बाद जो SWP के इंस्टॉलमेंट्स निकल रहे हैं, उस पे 12.5% का टैक्सेशन होगा ऑन दी प्रॉफिट साइड। ऑन द कैपिटल एंड गेन्स। एंड 2 साल के पहले जो भी आपका इंस्टॉलमेंट निकल रहा है, उसमें जो भी प्रॉफिट पोर्शन है, उसमें एज पर टैक्स स्लैब लगेगा। तो दोस्तों मैं इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आज मान लीजिए आपने अपने किसी कस्टमर से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आया, और आपने कहा कि सर मैं महीने का 6,000 रुपये आपको विथड्रॉल दूंगा, राइट? यानी कि आप साल का 72,000 रुपीज का विड्रॉल कर रहे हैं। दोस्तों मैं खाली इस बात को पर एक पर्सपेक्टिव में रखता हूँ कि लोग SWP को ठीक से समझते नहीं है, और आपका काम है इन्वेस्टर को ये बात समझाना कि 72,000 रुपीज का अगर आप इंटरेस्ट इनकम लेते हो SBI के बैंक FD से, तो आप पूरे 72,000 पे टैक्स देते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में, जब आप इस तरह के फंड्स में, आप कोई भी हाइब्रिड फंड में जब आप अपने पैसे रख करके 72,000 का विड्रॉल लेते हो साल भर में, तो आप पूरे 72 पे आप टैक्स नहीं भरते हो, आप खाली अपने प्रॉफिट पोर्शन पे ही टैक्स भरते हो। मतलब 72,000 रुपीज अगर मेरे बैंक अकाउंट में आया, तो इतने रुपए का मैंने माल बेचा और उतना पैसा मेरे अकाउंट में आया, दैट इज माई सेल वैल्यू, राइट? अब इसका कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है? तो अज्यूमिंग कि लेट से फंड अगर 10% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो शायद फंड ने मेरे को 65,000 रुपीज का मैंने यूनिट्स बेचा, जिसके अगेंस्ट में मेरे को 72,000 रुपीज मेरे खाते में आया। तो 7,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है। और पहले 2 साल अगर मैं 7,000, 10,000, 15,000 जो भी कमाऊंगा, मैं एज पर माई टैक्स स्लैब मैं टैक्स दूंगा। सो लेट्स से आप लोग सब जानते हो कि अभी तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, कंसिडरिंग द रिबेट पोर्शन। सो इफ यू आर इन्वेस्टर हु माइट बी रिटायर्ड इन्वेस्टर और हु माइट बी अ मिड सैलरी सेगमेंट इन्वेस्टर, आप पकड़ के चलोगे सर पहला 2 साल तो उसको कोई टैक्स का लफड़ा नहीं है, अगर उसका 12 लाख से कमती का इनकम है। और वही तीसरे साल में जब वो अपना विड्रॉल ले रहा है, तो पकड़ के चलिए कि अगर फिर से तीसरे साल में वो 72,000 रुपए देता है, जिसमें मान लो कि प्रॉफिट पोर्शन 25,000 रुपए का है, तो 25,000 रुपए पे वो 12.5% का टैक्स देगा, जो कि हार्डली उसको कुछ 3-1 हजार रुपए का फिगर आएगा। जबकि जब अगर वो इंटरेस्ट इनकम देता, तो ही कुड हैव बीन टैक्स्ड एज पर हिज टैक्स स्लैब। सो दैट इज वन ऑफ द मोर टैक्स एफिशिएंट रीजंस why you should be pitching this product to your investors, and we can definitely think कि इस प्रोपोजिशन में हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेरी आ रहा है नंदन जी की तरफ से कि इसमें क्या ग्लोबल इक्विटीज भी इन्वॉल्व होगा? सो निधि मैम, इफ यू वांट टू आंसर दैट। सो एक्चुअली इसमें अभी ग्लोबल फंड अभी हम नहीं देख रहे हैं, बिकॉज एक तो लिमिट जो अभी तक बढ़ा नहीं है। जब अगर ओके। मान लीजिए अगर लिमिट बढ़ता है एंड अगर हमारे और फंड्स हैं, अभी अभी तो हमारा फंड ऑफ फंड है यूएस का बाहर का, तो फंड ऑफ फंड में तो जैसे गौरव जी बोले वो नहीं है। अगर लिमिट्स बढ़ गई एंड अगर हमने फ्यूचर में कोई फंड ऐसे लॉन्च किए, तो हम डेफिनेटली देखेंगे, बिकॉज उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है। बट फॉर नाउ इट वॉन्ट बी पॉसिबल। फेयर इनफ।
So I think we रितेश, are इसमें ना जैसे निधि ने बोला, जस्ट टू ऐड ऑन, जैसे मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर का लॉजिक बताया था कि एज ऑफ नाउ अगर हमारी किसी फंड में फॉरेन इक्विटी है, जैसे फोकस्ड इक्विटी में है, focus equity आप में, for श्रीनिवासन example. ड्राइव कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स एन इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ इट, बट नो Yeah. डायरेक्ट एक्सपोजर एज ऑफ नाउ. Yes. So I think we are done with the questions, sir. Gaurav, sir, if you have some final words before we can conclude this part. नो, आई थिंक थैंक यू हितेश फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस. देखिए, मेरा मानना है दो चीज़ों तीन चीज़ों का ना, म्यूचुअल फंड ना बहुत सिंप्लीफाइड बिजनेस है, राइट. अनफॉर्चुनेटली जब भी हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, तब तब ज़्यादा हम अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, राइट. और अगर आप ये देखें ना, ये बंडलिंग ऑफ फंड भी ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इन अ सिंपल मैनर यू आर एबल टू पुश अक्रॉस अ गुड बंडल ऑफ स्कीम्स विद वेरिड स्टाइल्स ऑफ ऑपरेशंस. जैसे वासन थोड़ा ग्रोथ पे फोकस करते हैं, सौरभ थोड़ा क्वालिटी पे फोकस करते हैं, पाला थोड़ा वैल्यू पे फोकस करते हैं, प्लस अ मिक्स ऑफ थेमैटिक्स ऑल्सो. तो एक सिंपल डिफाइंड बुके ऑफ प्रोडक्ट्स है जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं. और आपने बिल्कुल सही बोला था हितेश कि इसमें कोई भी कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि हमने इसका एक्सपेंस रेशियो भी मैनेज रखा है. ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एक्सपेंस रेशियो है तो आप अपने HNI और अल्ट्रा HNI कस्टमर के पास नहीं जा सकते हैं. टैक्स एफिशिएंसी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आउट देयर, बिकॉज टैक्स ट्रिगर पिछले 4 5 6 साल में जितनी लोगों की रिटर्न्स आ गई हैं, उसकी वजह से टैक्स ट्रिगर अमाउंट्स काफ़ी हाई हो गए हैं. लोग उनको अवॉइड करना चाहते हैं. ऐसी सिचुएशन को एटलीस्ट अगर आज आप अवॉइड नहीं कर सकते तो फ्यूचर में जाके बाय यूसेज ऑफ दी स्कीम्स कर सकते हैं, करेक्ट. प्लस एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आप जैसे बोला कि एग्जिट पॉइंट्स आइडियली शुड बी सीन आफ्टर 2 to 3 years, बिकॉज अगर आपने SWPP करना है तो आप चाहेंगे कि आपका एक प्रिंसिपल वैल्यू में एक रीजनेबल अप्रिसिएशन आ जाए. अदरवाइज क्या होता है ना, कई बार मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से योर प्रॉफिटेबिलिटी में नॉट बी सो हाई, राइट. सो एटलीस्ट इट शुड मेक अ सब्सटैंशियल मनी ओवर द प्रिंसिपल, जिससे आपको SWP करने के बाद भी एक अच्छी रिटर्न्स आपकी दिखते रहें. आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन में की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करें. मैं हमेशा बहुत बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपको लमसम के साथ एक SIP जरूर पिक करनी चाहिए, विच आइडियली शुड बी 1.5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू. उससे ना एक कस्टमर का डिसिप्लिन हैबिट भी बहुत बनता है. देखिए, सिंपल सा बात है, जब आप एक एरोप्लेन में बैठते हैं ना, तब चाहे आपको एयर पॉकेट्स मिले, करेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप रियली कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पायलट संभालेगा. तो पायलट निधि है, उस पर भरोसा करिए, करेक्ट. पायलट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जैसे हमारे पास एयर इंडिया है, इंडिगो है, यहाँ पे SBI है, वो बहुत बहुत रिलायबल है. उस पर प्लीज़ विश्वास करिए. आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने मैक्सिमम कस्टमर्स को रीच आउट करना है और उनमें एक डिसिप्लिनरी हैबिट डालनी है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लमसम करिए, लमसम के साथ SIP जरूर करिए और इस डिसिप्लिन को लंबे से लंबा जारी रखिए. क्योंकि एक बहुत फेमस जोक मैंने पीछे पढ़ा था, सबसे अच्छी रिटर्न्स उनने बनाई हैं जिनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स खो गई हैं, राइट. So I think that remains the biggest discipline. Keep investing, maintain your right asset allocation, right, and keep it for long. Genuinely keep it for long to enjoy the real impact of compounding. These three lessons I think should be the word from my side to close this conversation. परफेक्ट गौरव सर, थैंक यू सो मच. दोस्तों, ये NFO स्टार्ट हो गया है आज से. Yeah, सो 25th of August is when this NFO starts and it will continue till 8th of September. September. राइट. तो सीधुता से ये मेरा बात हो रहा था कि दादा अभी तो दुर्गा पूजा आने वाला है, महल्ला आ जाएगा, फिर शॉपिंग चालू हो जाएगी तो कुछ काम नहीं हो पाएगा. तो बोले नहीं दादा, ऐसा नहीं है, 8 तारीख को आपको फ्री कर देंगे, उसके बाद आपको जितना शॉपिंग करना है सब करिए, Absolutely. पूजा अच्छे से मनाइए, लेकिन इस NFO बिल्कुल. में एक जबरदस्त काम करके पहले दीजिए. और अब GST डेफरमेंट की GST की वजह से काफी लोगों ने अपनी सेल्स भी अगले क्वार्टर के लिए परचेजेस भी डेफर कर दिए, तो आई एम श्योर उनके पास कैश फ्लो मेंटेन रहेगा. यूटिलाइज करिए, इस फंड में लेकर आइए. दैट विल बी अ रियली गुड यस. सपोर्ट. थैंक यू. यस. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.